So, hello everyone. So, guys, you might have heard one thing that better goals are always achieved with a better plan. And if we have dreamt of becoming something great, so the back end plan should always be great. So, your target is quite clear that you want to become the RBI Grade B officer that is in the year 2024. And for becoming that officer, guys, you know, one pillar that is very important in your preparation is current affairs. 40% weightage of general awareness in phase 1. Phase 2, if I talk about, in objective part, majority of questions, almost you can say 50% or more than that is coming from current affairs. Then, when you sit in the interview, you have been asked questions with regards to the recent development of RBI. Again, you have to be thorough about your current affairs. So, which tells us that this is one thing you cannot leave in this journey. अब इस जर्नी में इस करंट अफेयर्स को कैसे बेटर बनाना है, वही आज की इस वीडियो का प्राइम एजेंडा है. वेयर आई विल स्टार्ट विद दोस स्टूडेंट्स आल्सो हु माइट हैव प्रिपेयर्ड अ प्लान. वो बहुत प्लान बनाते हैं, हम लोग बहुत चीजें करते हैं, पर कुछ ना कुछ गलती करते हैं. तो स्टार्ट करेंगे 5 ऐसी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप कोई प्लान बना रहे हो. 5 मस्ट थिंग्स. Then we will discuss about those things in detail in this video, and at the end I will be discussing about the 7 must to do things in your plans that will make your plan a master plan. So let's quickly start with this video here. 10 मिनट दे दो, आपका पूरा प्लान क्या बन सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले डिस्कस करते हैं 5 चीजें जो आपके प्लान के बीच में होनी चाहिए. First thing is define your goal. If your goal is not defined, guys, then for what purpose you are making a plan? तो पहले गोल सेट करिए, फिर उस गोल के लिए क्या कीजिए, अपने टास्क को ब्रेक कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट करंट अफेयर्स, इट्स अ वेरी बिग थिंग. So we have to break current affairs in a certain part, that which part you can start preparation. Third thing is prioritize the tasks that you have created. एंड यू मस्ट हैव अ डिफाइंड डेडलाइन. ऐसा नहीं मैंने प्रायोरिटी सेट कर दी कि यार मेरे को तो ना आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना है, बट पढ़ मैं रहा नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं रहा. तो कैसे बनोगे ऑफिसर? ऑफिसर कैसे बनोगे भाई? पढ़ना तो पढ़ेगा ना. तो ये है हमारा प्रायोरिटाइज वाला पार्ट. फोर्थ पिलर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर, बिकॉज पहले 3 पिलर सबने बनाए हुए हैं अगर आपने प्लान बनाया है. फोर्थ पिलर इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. यू शुड बी कंसिस्टेंट इन वट एवर थिंग यू आर डूइंग, बिकॉज if you have left your preparation for one day, my dear friends, you are far behind from those aspirants who are बहुत ध्यान से, बहुत शिद्दत से जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं ना, आप उनसे दूर हो चुके हो और आप कंपटीशन से बाहर होने लग जाओगे. तो एक दिन इतना बड़ा कॉस्ट करेगा. और यार क्या है, कुछ महीने पढ़ लोगे, अच्छी तरह तैयारी कर लोगे तो आपका ड्रीम बन जाएगा. उसके बाद आप आराम से चीजें करिए. तो consistency should be there, and there should always be a perseverance in yours, because there will be ups and downs in your plans also. So you have to always be confident on yourself that yes, I can do. तो सबसे पहले तो इस प्लान को शुरू करने से पहले एक चीज रखिए, CPR. Consistency should be there. There should be perseverance, there is there, and there should be proper review of your plan also. That's the final pillar. Because it's not that the plans are always being made on a simple thing कि बना दे बस इसी को फॉलो करना. नहीं, you have to on a definite times of period of time आपको रिव्यू करना पड़ेगा अपने प्लान को. You have to adjust your plan as per the review that you have got, and then again start working on this plan, start persisting with this specific plan here. So I hope guys, if you are making your plan on your own, please take a printout here and note down these 5 points, because this is the karta dharta of your plan here. Now based on these 5 pillars, I myself, and based on the analysis of past year's examination as well as listening to the toppers, ठीक है, उन्होंने भी ये 5 पॉइंट फॉलो किए. तो क्या एक चीजें हैं. सबसे पहला पॉइंट था डिफाइन योर गोल. So if you look at the examination of current affairs, guys, specifically phase 1 examination, if I talk about here, it's really becoming hell. इतना आसान नहीं है पेपर क्लियर करना. और gone are those days जब हम कहते थे कि आप 80 में से 60 ले सकते हो, 70 ले सकते हो, because there is a reason for that. The paper is really becoming difficult. So that is the first thing that you have to do is make a practical target. If you are preparing yourself on that note, okay, I will be scoring 70 marks, और पेपर में बैठे मार्क्स नहीं आए, you will always get disheartened. No. Make a practical that, okay, this is much, this is a score that I should target and I will clear the phase 1 examination. Cut off is going near to near around 54, 55, like 60 के अराउंड जा रही है.
और आपको बाकी सेक्शन में भी तो कुछ करना है. So your practical target should be around 40 to 45 marks also, because you just have 25 minutes to solve those questions. So 25 minutes, if you are scoring this much marks, it's a good thing as per the recent trend. Yes, if an examination becomes easy, obviously you will score good marks here also. तो ये आपका पहला पॉइंट है, गोल डिफाइन किया हमने. अब आते हैं हमारे सेकेंड पिलर के ऊपर, दैट इज setting up the breaking down your current affairs. So if I talk about current affair is always based on 4 pillars. Just breaking down based on the analysis of past 5 years examination. What are these pillars? Most important, the government schemes. Then comes your RBI notifications, or if I talk about RBI website. Third point comes your reports, and the fourth pillar is your current affairs. So ये 4 pillars को आपको type by type break करना है. And if I talk about current affairs, further breakage could be done here also, as it consists of current affairs related to syllabus of economic and social issues, that is ESI, current affairs related to syllabus of finance, and then the normal set of current affairs which are generally being asked in phase 1, like appointment is there, persons in news is there, science and technology news are there, defense exercises, days in news. So that could be tackled from here. So these are the breakdown of your current affairs. Now comes the most important part, that when you have made a plan, breakdown भी यहां तक बहुत बच्चों ने कर लिया होगा कि सर what is the right time to start preparing current affairs. Most common doubt I always came across from a student. कब पढ़ें? अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, है ना ये डाउट मन में, कब पढ़ें? आंसर सिंपल है. दैट इज द थिंग. फेमस कोट ऑफ संत कबीर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. वाई टू वेट? क्यों वेट करना है? क्योंकि पता ही है यार करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है. आज से क्यों नहीं पढ़ना स्टार्ट करना? कुछ ना कुछ तो हेल्प करेगा ना, आपका एक पर्सपेक्टिव बना देगा, आपको थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगा, आइडिया लगेगा कि क्या चल रहा है. तो करना तो भाई आज से ही स्टार्ट है. और अगर आप वीडियो देख रहे हो और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 2 महीने बाद 3 महीने बाद करूंगा, तो भाई आप लेट हो जाओगे, बिकॉज समझने में भी टाइम लगता है. यही पार्ट है जब मैंने आपके करंट अफेयर्स के सिलेबस, अगर मैं प्लान को बोलूं तो मैंने प्लान को यहीं पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. दैट इज फर्स्ट केस इज बिफोर नोटिफिकेशन, बिकॉज टिल दिस टाइम वी डू नॉट नो व्हाट्स द एग्जैक्ट टाइम जो नोटिफिकेशन विल बी कमिंग आउट, बिकॉज देयर आर रूमर्स के इलेक्शन के कारण आपके पेपर्स डिले हो जाएंगे. बट होगा तो सी ना, तो क्यों वेट करनी है कि यार कब नोटिफिकेशन आएगी? उससे पहले क्या कर सकते हो? उससे पहले इज योर अंडरस्टैंडिंग फेस. गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज अंडरस्टैंडिंग फेस इज द केस 1. देन आफ्टर नोटिफिकेशन इज द सेकेंड पिलर, दैट इज नोन एज योर, अब होगा स्पीड टाइम, कि अब हमें एक्सेलरेट करना है जो भी हमने पिछले टाइम से पढ़ा है. दैट्स द ओनली थिंग. Because if you see the persons who are clearing this examination, this is what they are doing. They are not just गए कि मैंने 1 हफ्ता पहले पढ़ा करंट अफेयर्स, नहीं हो रहा भाई, वो दिन तो भूल ही जाओगे, हो जाएगा, नहीं होगा. That's the point. That's the harsh reality of this current affairs. नहीं होगा. तो ये 2 केसेस पे हम काम करेंगे, और पढ़ना भी हमें सब कुछ ही पड़ेगा. इट्स नॉट अ केस लाइक दैट कि आई विल से यार आप ना ये 3 चीजें पढ़ लो, बिकॉज भाई वो 3 चीजें नहीं है. पढ़ना सब कुछ ही पड़ेगा, क्योंकि सब चीजें कहीं ना कहीं एग्जाम से रिलेट करती है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस, दैट इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड द करंट अफेयर्स. एंड ऑन दैट आई हैव मेड अ वेरी सिंपल थिंग फॉर यू. ठीक है जी. स्कीम इज वन थिंग दैट ऑलवेज अ स्टूडेंट बिकम्स दैट सर हो नहीं रही, तो आई हैव अ सिंपल सॉल्यूशन फॉर दैट. स्टार्ट रीडिंग 1 स्कीम अ डे. दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे ऑफ रिमेंबरिंग अ स्कीम. टेक अ टाइम, लेट्स टेक a half an hour for a day. ठीक है जी. एंड कवर 1 स्कीम, अंडरस्टैंड इट, डू नॉट क्रैम द स्कीम. अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है, हर एक चीज समझो. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, लेट्स टॉक अबाउट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. इट्स अ स्कीम सिंपली टॉकिंग अबाउट द एलपीजी कनेक्शंस टू द वुमेन. बट इफ यू अंडरस्टैंड द स्कीम, that scheme got started by the Ministry of Petroleum. I make a small story here to make you understand here. Prime Minister visited to Balia. He has seen that there are many women who are preparing food on kacha chulas. Their healths are affecting. So he was really disheartened here to see this thing. He called the Ministry of Petroleum and told him, भाई मुझे इन सबको एलपीजी कनेक्शंस लेके देने हैं. That's the objective. Clean cooking food has to be provided to them. Then the second point, Petroleum Minister replied, so that's a very good initiative, but we cannot issue LPG cylinders on one go. We need some specific time here. You take your time, but that's the ultimate goal I want. That's what Prime Minister said. So
The next question comes, who should be the registrar? Who should be the person whom the LPG should be given? He says women, because they are the main sufferers. वही तो घर पे खाना बना रही हैं, उनके नाम पे तो एलपीजी सिलेंडर, और कोई मेल कोई माइनर किसी के नाम पे, सिर्फ वुमेन के, एडल्ट वुमेन के नाम पे दे दो। बोला बिल्कुल ठीक है। नाउ द वुमेन वर रियली हैप्पी, बट दे आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर वी हैव टू थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलपीजी नहीं ले पा रहे, we do not have that much money that we could buy a cylinder. Prime Minister said, okay, you will be given first LPG cylinders free. Second part is refilling of the LPG cylinders. For that, what we will do is, it's not that we will give you a free thing here. We will provide you a subsidy here that will be revised on a regular intervals. That's the subsidy part here. Then comes your third part. The general case में क्या होगा, हर जगह में आपकी ये स्कीम एप्लीकेबल होगी, आधार कार्ड मैंडेटरी हो जाएगा. Exception is given only to two states, that is Assam and Meghalaya. So with this thing you have understood the scheme. So अगर मैं आपको बोलूं आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखना है और आपको एक पॉइंट लिखना है विद रिस्पेक्ट टू हाउ द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द एनीमिक वुमेन्स, तो कहीं ना कहीं आप ये वाला पॉइंट भी तो याद कर सकते हो कि यार वुमेन वर सफरिंग फ्रॉम द कच्चा चूल्हास, देयर लंग्स वर बीइंग अफेक्टेड व्हिच कुड कॉज एन देम एनीमिक. तो यहां पे क्या किया गवर्नमेंट ने, ये स्कीम लॉन्च कर दी. अगेन व्हाट यू आर सीइंग ना कि आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक ऐसा पॉइंट लिखा डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में जो कि बिल्कुल ही अलग चला गया. तो दैट्स द पार्ट हियर, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अ स्कीम, वन स्कीम अ डे. देन कम्स द सेकंड पार्ट, start with editorials, read one editorial a day, because descriptive answer writing is again a very important thing for the examination. And point is very simple, I will not say कि आप बहुत पढ़िए, आप अपने एग्जाम सिलेबस को प्रिंट निकाल लीजिए, उसके रिगार्डिंग जो भी आपको एक एडिटोरियल मिलता है डे में उसको पढ़िए. देन कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. और एक चीज यहां पे बोल रहा हूं, एडिटोरियल्स में क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरा एडिटोरियल पेस्ट नहीं करना, जस्ट take the points that you can write for your descriptive answer. That's the only thing here. Then comes the next important part, read RBI notifications and reports. So here is a simple approach here. What you could do is you could either read RBI notifications on alternate day, या फिर कीजिए 2 to 3 days dedicatedly give to RBI notifications and thoroughly पढ़ो उसको आराम से. Same goes with reports also. Now, when you have read all these things, then comes to the final pillar of your examination, that is current affairs. So, read the current affairs of, specifically focus should be given on the current affairs of ESI and finance. And yes, I will not say that leave GA. I will say only thing, just give 3 to 4 readings to the GA section so that you are in touch with the general awareness. So this is the basic things that you have to follow before notification. And guys, either you are a working candidate or you are non-working candidate. मैं सिर्फ बोलूंगा अगर आप अपने डिफाइंड टारगेट्स करोगे तो हो जाएगा. यहाँ पे एक पॉइंट आप सोचोगे सर मैंने यहाँ पे कोई ना डेडलाइन नहीं लिखी, मैंने आपको बता दी पर लिखी नहीं है. रीजन फॉर दैट, इफ यू आर अ न्यू कमर, यू हैव जस्ट स्टार्टेड करंट अफेयर्स, आई डू नॉट वांट टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन यू. ये नहीं 2 दिन में पढ़ लो भाई, नहीं समझ आया तो कैसे पढ़ लोगे 2 दिन में, समझना ही तो है, यही तो अंडरस्टैंडिंग है. दैट्स द पॉइंट हियर. Now, for the understanding, क्या चीज सबसे बेस्ट कर सकते हो, start watching the videos of YouTube, because YouTube is the very important thing which many toppers have used. आप भी क्यों पीछे रह रहे हो, आप भी यूज करो, and they are aligned with the things. जैसे अगर आपको RBI notification में डाउट है, watch this video on regular interval, Tuesday, Thursday and Saturday. Kritika ma'am is coming up with the finance current affairs. That's at 10 a.m. Then comes the second part, City 360 wala part. Here we are covering your most important GA plus ESI current affairs. That is at 5 p.m. again on Tuesday, Thursday and Saturday. So watch this thing. That's the point here. अगर लाइव नहीं देख पा रहे यार तो आप रिकॉर्डेड देख लो, 2x पे देख लो. But do watch these videos because that would build your understanding. Because if you just jump on the PDFs, it's always a problem. सर PDF से नहीं समझ आ रहा, तो ये समझो ना यहां से, ये वाला पार्ट. अब आते हैं आफ्टर नोटिफिकेशन वाले फेज में. अब आता है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु ऑलवेज आस्क मी सर व्हेन शुड वी स्टार्ट रिमेंबरिंग फैक्ट्स, बिकॉज देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर डायनामिक इन नेचर. फॉर एग्जांपल, इफ लेट्स से यू आर रीडिंग अ करंट अफेयर्स इन जनवरी, देयर आर 44 lakh पीपल हु गॉट रजिस्टर्ड ऑन ई-श्रम पोर्टल. नाउ योर एग्जामिनेशन इज इन जुलाई, आपको नहीं याद होने वाला. अब जून में अपडेट होगा डाटा, तो जून वाला डाटा इंपॉर्टेंट है ना, दे विल नॉट बी आस्किंग डाटा ऑफ जनवरी. तो लेटेस्ट डाटा पे ही क्वेश्चंस जनरली आ रहे हैं, तो वो अच्छी तरह याद करने हैं. कोर जो है वो अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है कि स्कीम का टारगेट क्या है, फीचर क्या है, वो कोर है, वो अंडरस्टैंडिंग में आएगा. यहां पे
डायनामिक फैक्ट्स आएंगे, रिमेंबर करना है। नाउ हियर द प्रायोरिटी गॉट स्टेट because last month I always say your focus should always be on current affairs, that is GA plus CS and GA plus finance, and that is the main time to start pushing yourself with respect to the current affairs of GA. thoroughly पढ़ना start कर दीजिए। Then comes the next part, scheme वाला वही है, because if you are reading one scheme a day till this point, if I say आपकी almost 70 schemes हो जाएंगी अगर आप अब से भी 2-2.5 महीने पढ़ते हो, ठीक है ना। अगर आप लेट्स से अप्रैल तक जाते हो, 31 days, 30, 61, 10 days of February is there, you have almost covered 71 to 74 schemes। समझ रहे हो? तो यहां पे स्कीम आपकी इतनी कर रहे हो डेली, तो वैसे पढ़ते रहो, ठीक है जी। देन कम्स RBI notifications and reports again। now because here the point is you are always going through this thing, यहां पे थोड़ा सा बस अब आपको एक्सेलरेट करना है। Same goes with the things। now this is a very important thing guys, there are some reports which are being given in your notification, so you might be feeling कि सर ये reports तो हमें पहले पढ़नी चाहिए। Reason being that is because here there are many reports, you always need to remember latest edition, and till the time you do not know the exact examination date, I will not say start reading these reports, because जिस दिन notification आई, you have the exam date and now you know when the latest edition, read only the latest editions of these reports, like RBI annual report, it comes around May to June, so if your paper is in July, then the latest one will be important। then comes trends and progress of Bank India report, our financial stability report, they are the reports which are released in December में भी आती है, जून में भी आती है। report on currency and finance, IMF's world economic outlook, world development report, latest edition are important, and the time when you get the notification, सबसे पहले इनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। give at least some days, let's say week or 2 weeks to these reports, and then remember these reports। now again comes the thing here, मैंने आपको बोला एक चीज तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी, YouTube वीडियोस। यहां पे एक चीज आपको और करनी है, वॉच दिस वीडियोस, एंड देन द लास्ट रिवीजन के लिए क्या है, वी हैव द मैराथन्स फॉर यू। मैनी स्टूडेंट्स हैव वॉच्ड द मैराथन्स, द टॉपर्स हैव वॉच्ड द मैराथन्स, यू कैन वॉच देयर स्पेसिफिक वीडियो ऑन अवर यूट्यूब चैनल, ठीक है, दैट हाउ दे हैव टेकन द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग्स, द मैराथन्स। अगेन दैट मैराथन शुड बी यूज्ड फॉर रिवीजन, इट शुड नॉट बी दैट पार्ट जहां पे आप आगे बोलो कि अब मैं पढ़ लेता हूं, पढ़ना हो गया। रिवीजन इज द थिंग हियर। एंड नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट योर रिवीजन, you will be asking me one question here, so you have talked both before notification plan, after notification plan, हो गया। रिवीजन नहीं है सर, पढ़ना क्या है, कहां से पढ़ें। अब आते हैं आपके पढ़ क्या सकते हो। so the videos I have told you, then with respect to the content, if I talk about, we have again, you can say bifurcation has been given here also, as I have bifurcated your pillars of current affair. Schemes, dedicated document is here, that is schemes tab. Reports have reports tab, RBI notification, RBI news tab, and for the remaining current affairs of GA, ESI and finance, you can have your current tab here। now comes the next important part। अब ये प्लान बन गया, अब ये प्लान मास्टर प्लान है या नहीं है, this will be decided by these 7 pillars। और आप ध्यान रखना है 7 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट, बस यहीं पे यहां तक भी बहुत बच्चे सही थे, बट यहां पे गलत क्या हो सकता है। सबसे पहला, रेफर टू सिंगल सोर्स गाइस, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू। इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, यस यू कैन रेफर टू वन सोर्स, इधर इट कुड बी PIB, इधर कुड बी हिंदू, कोई भी एक सोर्स फॉलो करो, उसको कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए किसी भी मैगजीन्स के साथ। बिकॉज गाइस इफ आई टॉक अबाउट करंट अफेयर्स, इट्स एन ओशन, यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन सिंगल। PIB पे सारा पेपर नहीं आएगा, बट अब कोई ना कोई सिंगल कंपाइलेशन पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। दैट इज द थिंग, स्टिक टू अ सिंगल सोर्स, और यू कैन टॉक अबाउट सिंगल कंपाइलेशन विद रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन। उसको बार बार पढ़ो, ताकि एट द टाइम व्हेन यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन, यू शुड बी सो मच कॉन्फिडेंट दैट जो मैंने पढ़ा है उसके बाहर से आ गया तो जहां से पढ़ा उसकी गलती है, बट जो उसके बीच में था उसमें से कुछ गलत नहीं होगा, ये मुझे पता है। इस पर तैयारी से प्रिपरेशन करो, स्टिक टू अ सिंगल सोर्स। विद रिस्पेक्ट टू रीडिंग, अब प्रैक्टिस करनी है सर। आई ऑलवेज से प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। प्रैक्टिस के लिए क्या करें, प्रैक्टिस मोर एंड मोर नंबर ऑफ MCQs, एंड देयर आई ऑलवेज से यहां पे आपको पूरी खुली छूट है। यू आर फ्री हियर, जस्ट रीड इट, practice the questions from any source that is available on the internet। जहां पे आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिल रहे हैं RBI के रिगार्डिंग, अच्छा लेवल क्या है वो पता चलेगा PYQ से, कि whether the questions are being aligned with the PYQs or not।
तो PYQs आपको कहां से मिलेंगे? दिस गाइड बुक इज गिवन, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एंड दैट्स द पॉइंट हियर। ठीक है, तो PYQs करो, जितना ही कर सकते हो करो भाई। तीसरा पार्ट, रिवीजन। रिवीजन इज द सोर्स हियर, रिवीजन इज द सोर्स फॉर रिटेंशन। जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार रिटेन करोगे, और रिवीजन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। रिवीजन क्या करना है? रिवीजन मैंने सिंपल पे रखा है 5 आवर्स, 5 आवर्स, 5D आवर्स बोलते हैं इसको मैं। फर्स्ट डे, देन यू हैव थर्ड डे, you have your 7th day, you have your 15th day and 30th day, revise these topics, and 30 के बाद start doing 30, next 30 and next 30 days. If you are doing these things, my friends, guys, if you have gone through something, एक गाना भी आप 10 बार सुन लेते हो ना तो आपको याद हो जाता है, तो करंट अफेयर्स क्यों नहीं याद होंगे? क्यों नहीं आपको मेन चीज याद होंगी? फैक्ट्स हो सकता है बट आइडिया तो लगेगा, एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाओगे। यही तो मेन प्रॉब्लम है, हम रिवाइज ही नहीं कर पा रहे। रिवीजन शुड बी अ पार्ट ऑफ योर प्लान, अगर नहीं है तो भाई करना पड़ेगा उसको। फिर आता है पिलर नंबर नेक्स्ट। नाउ व्हेन यू हैव डू ऑल दिस थिंग, एनालाइज कीजिए अपनी मिस्टेक्स को। दैट्स व्हाट आई से, रिव्यू एंड एडजस्ट योर प्लान। सो व्हेन यू प्रैक्टिस द थिंग, व्हेन यू हैव रेड द थिंग, एनालाइज द पॉइंट्स दैट इज देयर, कि भाई मैंने रिवीजन पे फिर भी मुझे कोई गलतियां मिल रही हैं, तो प्लीज नोट डाउन दोस पॉइंट्स and work on those mistakes whenever you are preparing the next thing. For example, I have covered the schemes question. So I am very uncomfortable with respect to the launch year of the schemes. तो मैं क्या करूंगा? मैं टेबल बनाऊंगा सिंपल, ईयर और स्कीम्स के नेम 2020, 2021, 2024, that's what I will do. तो मैंने प्लान बनाया, यहां पे स्कीम्स के नेम लिख लिए और ये मेरा स्कीम्स वाला पॉइंट याद हो गया। If I forgot the ministries here, that's the same thing I will do, ministry, and then I will name the name of a scheme here, ministry and scheme here. That's what I will do. तो हमें अपने प्लान को रिव्यू करते रहना और उस हिसाब से मुझे अपने एक काइंड ऑफ scribblers बनाने हैं. That's the next point here. Make scribble notes here because that's the most important thing. A common question I always being inquired from students. So shall we make a note here? I always say the note making always depends that how you are approaching the thing. I'll give you an example here. अगर आपने पूरे एक नोट पढ़ा, उसे कोई कॉपी कर दिया पूरा, तो वो नोट सुनना हो यार। You should make scribbler notes. What are scribbler notes? These are whenever you are reading something, जो मैंने आपको बोला फर्स्ट डे पे आपने रीड किया, बिफोर गोइंग टू स्लीप टेक अ नोटबुक विद योरसेल्फ, जितना भी पढ़ा है उतना वहां पे लिख लो। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग वेक अप, लुक एट दैट पेज, इफ देयर इज सम पॉइंट दैट इज इन एडिशन टू दैट, डू राइट दैट थिंग। थर्ड डे प्रैक्टिस द एमसीक्यूज, एमसीक्यूज प्रैक्टिस किया, गलतियां हुई, मिस्टेक्स आई, यहां पे लिख ली। देन 7th डे कॉम्प्लीमेंट योर स्क्रिबल्ड नोट्स विद द मटेरियल दैट यू हैव, दैट इज कोई भी सोर्स पढ़ रहे हो वहां से कर लो। 15th and 30 days just revise the scribble notes and these are those notes which are your own notes only, आपके खुद के नोट्स हैं, पूरी डिटेल नहीं लिखना, जिस तरह से आपको समझ लगता है उस हिसाब से बनाओ। आप माइंड मैप बना लो, आप निमोनिक बना लो, you could make a story here, in whatever thing you are comfortable, make these notes in that line. Then comes the next part, watch YouTube videos. That's something I will say guys, this is the thing guys, मॉडर्न जमाना आ चुका है, सोशल मीडिया many people are using, most of us, there will be very less students who will say यार मैं YouTube नहीं देखता। आप देखते हो यार YouTube, हर बंदा देखता है, मैं भी देखता हूं, आप भी तो देख रहे हो, तो क्यों ना उसको हम अपनी स्टडी का पार्ट बनाएं। I am a working candidate, I cannot read the PDF, but I can watch the videos to understand the important points that are there. For example, if you are watching the CT360 video that is inclined with the current tab, schemes tab and reports tab, and if you are watching videos consistently, then when you go to the document, you know there are certain set of topics which you have already read. You will go with the confidence in going to that specific document. तो ये चीज आपकी YouTube वीडियोस हेल्प करेंगी, इनको वॉच कीजिए रेगुलरली, बिकॉज आई नो मेनी ऑफ स्टूडेंट्स जो 2 दिन देखते हैं, 3 दिन देखते हैं, और ये सच्ची बताना दिल पे हाथ रख के, आप भी उसमें से तो नहीं हो। 2 दिन वीडियो देखी, 3 दिन देखी, चौथे दिन छोड़ दी कि यार मजा नहीं आया, पता नहीं क्या पढ़ा दिया यार, अच्छा नहीं लगा। भाई अगर कोई भी चीज है आप कंसिस्टेंट देखो, हो सकता है आपने 2 दिन वीडियोस देखी, 3rd and 4th डे यू मिस्ड, मिस इज वन थिंग विच कैन कॉस्ट योर मार्क्स। आपने वो वीडियो छोड़ी, वो वीडियो में से टॉपिक सर ने पढ़ा दिया, उस टॉपिक में से एग्जाम में क्वेश्चन है, एंड देन यू विल फील कि यार ओहो मेरा तो वो छूट गया,
और फिर अगर भूल दिया किसी ने, क्या सर ने उस पर पढ़ाया था, अच्छा पढ़ाया था, मेरा कैसे मिस हो गया, अच्छा यार मैंने ना 2 दिन की वीडियो छोड़ दी थी, क्यों छोड़ी थी भाई, वो 2 दिन आपको फाइनल रिजल्ट में कॉज करेंगे। और अब तो आरबीआई एग्जाम ऐसा है, इवन द 0.25 मार्क इज मेकिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। So you should not miss the YouTube videos. That's what I will say. These are last 2 pillars जो मैंने एडिशनल किए हैं। ये 5 सब कर लेते हैं, छठा ऐड करो। वर्किंग एस्पिरेंट्स यू शुड, आप बस पे जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, वॉच दिस वीडियोस 2x पे देख लो। नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स सोने से पहले वीडियोस देख लो, सुबह उठ के एक बार देख लो, फटाफट में रिवाइज हो जाएगा। बिकॉज दैट वीडियोस विल हेल्प यू इन 2 ways, अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो इफ यू आर अ न्यू कमर, एंड इफ यू आर आपने डॉक्यूमेंट पढ़ लिया, सब कुछ बना लिया यहां तक, इसको रिवाइज कहां से कर रहे हो, यहां से, कि जो मैंने यहां पे लिखा है यहां पे वो सब चीज कवर्ड है या नहीं, कहां से वेरीफाई होगा, यूट्यूब वीडियोस। एंड देन कम्स द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर, रिजॉल्व योर डाउट्स। बिकॉज व्हेन यू आर मेकिंग अ प्लान देयर इज अ शॉर्ट गारंटी कि आपको डाउट्स आएंगे, 100% आएंगे। और अगर नहीं आ रहा तो फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि मुझे डाउट ही क्यों नहीं आ रहा भाई, क्या मैं सही नहीं पढ़ रहा, या मुझे कुछ पक्का नहीं आया। डाउट शुड बी रिजॉल्व, और उसके लिए सिंपल लॉजिक है यार, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। क्योंकि अगर आपका कोई भी एक डाउट है जो आपके मन में रह गया, तो माय डियर फ्रेंड्स, एट द एंड उस डाउट के कारण अगर आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर नहीं बने, दैट्स द मोस्ट हार्टफुल। सबसे ज्यादा दिल तब दुखता है जब मेरे एक डाउट ना पूछने के कारण मेरी खुद का कैरियर मेरा पीछे हो गया, मैं 1 साल पीछे हो गया। तो डाउट शुड बी रिजॉल्व, एंड फॉर दैट पर्पस वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। वी हैव अ यूट्यूब चैनल जहां पे हम आपके साथ सीरीज लेके आते हैं, आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, कम टू दोस चैनल्स, आस्क योर डाउट्स हियर, ठीक है जी। देन for the PDFs that we are giving on the YouTube channel, we have a Telegram channel, dedicated channel, तो आप Telegram channel का लिंक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। And then after that we are helping you, any query I say just 2 things, 2 चीजों पे बस ध्यान रखना। क्या करना है आपको, note down this email ID with you, just give me a second, ठीक है जी। नोट डाउन दिस ईमेल आईडी, जस्ट ड्रॉप अस एन ईमेल, और एक नंबर भी नोट कर लीजिए, यू वांट टू अरेंज अ कॉल विद मी और एनी फैकल्टी, डू दिस थिंग। सो आई होप नाउ यू विल बी क्लियर विद योर प्लान्स, ठीक है जी। और अब आपको ये, आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प्स यू ऑल्सो, ठीक है जी। तो चलिए, अगर ये प्लान आपको अच्छा लगा तो जस्ट टेल मी ऑनेस्टली, ठीक है, मुझे बताओ कि सर वाकई द प्लान इज गुड, ठीक है जी, एंड यू विल इंप्लीमेंट द प्लान, दैट्स द ओनली थिंग, ठीक है। तो बताओ जी कि प्लान अब आप इंप्लीमेंट करोगे ना, और अगर इंप्लीमेंट करोगे तो सिर्फ 3 वर्ड आपको लिखने के, सर यस आई एम रेडी फॉर द प्लान एंड आई विल डू दीज 3 वर्ड्स, कंसिस्टेंसी, practice and revision. That is the 3 words. Please write it down if you are ready for becoming the RBI Grade B officer. So that's all for this video, guys. I wish you all the best. Bye-bye.